بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے، جن میں آپ علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بھی شامل ہے، اور آپ علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار تھا اور لقب نوح ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نوح کے لقب سے معروف ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پسماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی اور صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ دوستو، اسی حوالے سے سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ دوستو، جہاں تک نوح علیہ السلام کی ولادت کی بات ہے تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں تقریباً 146 برس کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان دونوں شخصیات میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ دوستو، یہاں اگر قرن سے مراد صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام صائم الدہر تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بے شمار اوصاف قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صرف شاکر یعنی شکر گزار ہی نہیں بلکہ شکوراً یعنی دائمی شکر کرنے والا قرار دیا ہے، اور پھر شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضائے مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ماورا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے ہیں، جن میں ایک انعام یہ ہے کہ صرف آپ علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلی۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں، اور رومی یافس کی اولاد سے ہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام یہ ہے کہ نبوت اور کتاب آپ کی اولاد میں رکھی گئی، اور آپ کے جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئیں، جیسا کہ سورہ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔
दोस्तों, बयान की गई आयत में 2 रसूलों का जिक्र खैर है। इसकी तफसील ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अनबिया और रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बज़ात खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से हैं। और यूँ किताब अव्वलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और सानियन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हुई। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का एक इनाम ये भी है कि बाद वालों में आपका जिक्र जमील बाकी रखा गया। इस हवाले से सूरह साफ़ात में इरशाद बारी ताला है, और पीछे आने वालों यानी अनबिया व उमम में हमने उनका जिक्र खैर बाकी रखा। दोस्तों, यहाँ बाद वालों से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद वाले अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत मुराद हैं। और ये हकीकत हम अपनी आंखों से मुशाहिदा भी कर रहे हैं कि दुनिया भर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद और बाकी है। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का एक इनाम ये भी है कि फ़रिश्ते, जन्नात और इंसान सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर क़यामत तक सलाम भेजते रहेंगे और अल्लाह ताला की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम का कलमा हमेशा मौजूद रहेगा। जैसा कि सूरह साफ़ात में इरशाद बारी ताला है, सलाम हो नूह पर सब जहानों में। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला के चंद इनामात का, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अब बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग की, जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद दुनिया में रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती की वबा आम हो गई और लोगों ने दीगर बुतों के साथ साथ वद, स्वा, यागूस, याऊक और नसर के नामों से मौसूम बुतों की पूजा शुरू कर दी। ये 5 बुत उनके नज़दीक दूसरों से ज़्यादा अजमत वाले थे और इसी वजह से कुरान करीम में भी इन्हीं 5 बुतों का जिक्र किया गया है। बुतों का पस मंज़र बयान करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो वफ़ात पा गए तो शैतान ने उनके दिलों में ये बात डाली कि जिन जगहों पर वो अल्लाह वाले बैठा करते थे वहाँ उनके मुजस्समे बनाकर रख दो और उन बुतों के नाम भी उन नेक लोगों के नाम पर ही रख दो। लोगों ने अकीदत के तौर पर ऐसा कर दिया, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते थे। जब वो लोग दुनिया से चले गए और इल्म भी कम हो गया तो उन मुजस्समों की पूजा होने लग गई। जबकि हज़रत मोहम्मद बिन काब कर्जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वद और सबा वगैरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम हैं और ये बहुत इबादत गुजार थे। जब उनमें से एक शख्स का इंतकाल हुआ तो लोग उन पर शदीद गमज़दा हुए। ये हाल देखकर शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आया और कहा कि तुम अपने साथी पर गमगीन हो। लोगों ने जवाब दिया कि हाँ। शैतान ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए इस जैसी तस्वीर बना दूं जिसे तुम इबादत करते वक्त अपने सामने रख लेना, और जब तुम उसे देखो तो वो साथी तुम्हें याद आ जाए और तुम्हारे दिल को सुकून नसीब हो। लोगों ने कहा कि हमें ये पसंद नहीं कि इबादत के दौरान हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ हो। शैतान ने कहा कि फिर तुम उसे अपनी इबादत गाह के आखिरी कोने में रख दो। लोगों ने कहा कि हाँ, ये ठीक है। चुनांचे शैतान ने उनके लिए तस्वीर बना दी और जब 5 अशखास का इंतकाल हो गया तो शैतान ने सबकी तस्वीरें बनाकर उनकी इबादत गाह के कोने में रख दी। फिर एक वक्त वो आया कि लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर उन तस्वीरों की पूजा शुरू कर दी। दोस्तों, शैतान के बहकावे में आने के बाद कुफ्र ज़लालत के अंधेरों में घिरे उन लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। एक सही कौल के मुताबिक उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया कि वो अपनी कौम को अज़ाब इलाही से डराएं कि अगर वो लोग ईमान ना लाए तो उन पर दुनिया में भी खौफनाक अजाब आएगा और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब का शिकार होंगे। इसी हवाले से सूरह नूह में इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि आप अपनी कौम को डराएं कबल इसके कि उन्हें दर्दनाक अजाब आ पहुँचे। दोस्तों, यूँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही की तामील में अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अजाब से बहुत वाज़ेह अंदाज में खबरदार करने और डर सुनाने वाला हूँ और तुम्हें कहता हूँ कि अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करो, शिरक ना करो और अल्लाह ताला के गज़ब से बचने के लिए उसकी नाफरमानी से दूर रहो। अगर तुमने मेरे अहकाम की तामील की और मेरे लाए हुए दीन की तस्दीक की तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अजाब से महफूज रखेगा। इस हवाले से सूरह नूह में इरशाद बारी ताला है कि उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें वाज़ेह डर सुनाने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरी इताअत करो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत अता करेगा। बेशक अल्लाह की मुकर्रर करदा मुद्दत जब आ जाए तो मोहलत नहीं दी जाती, काश तुम जानते होते। लेकिन अफसोस कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में कौम ने सरकशी का मुजाहिरा किया, आपको झूठा करार दिया, तौहीद को मानने और शिरक को छोड़ने से इनकार कर दिया और इसके अलावा धमकी भी दी कि अगर आप अपने वाज़ो नसीहत और दीन की तबलीग से बाज ना आए तो हम आपको पत्थर मार मार कर कत्ल कर देंगे। इस इनकार तकजीब और धमकियों के साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना जुमले भी कहने लगे कि माज़अल्लाह ये पागल हैं। गोया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जिस्मानी, रूहानी, कल्बी, ज़हनी और हर मुमकिन ईज़ा पहुँचाने की उन सरकशों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी इंतहाई बाहिम्मत रसूल थे
اور آپ نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ القمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر و برداشت کا حکم فرمایا، اور انہیں باہمت رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ سورہ احقاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں۔ جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ دوستو حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سخت ناروا سلوک کے باوجود انہیں توحید پر ایمان لانے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی بروز قیامت عذاب کا خوف ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس امر سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا کہ ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس واقعے کو سورہ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ لیکن دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ سرداران قوم کا جہالت و سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ میں تو اپنے رب تعالیٰ کے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ دشمنوں پر اس کی گرفت انتہائی سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و گناہ کے انجام سے ڈرائے اور تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے سبب تم پر رحم کیا جائے؟ دوستو حضرت نوح علیہ السلام کے اس جواب کا قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں تذکرہ یوں کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ دوستو مفسرین کے نزدیک یہاں دردناک دن سے قیامت کا دن یا طوفان آنے کا دن مراد ہے، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں سرداران قوم کے حضرت نوح علیہ السلام پر لگائے جانے والے 3 اعتراضات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کی نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر پہلا اعتراض یہ تھا، آپ ہماری طرح عام بشر ہیں اور آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ نوح علیہ السلام پر دوسرا اعتراض یہ کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی قدر و قیمت نہیں، اور وہ مفلس اور غریب لوگ ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر تیسرا اعتراض یہ کیا
कि उन्हें आपकी ज़ात में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही जिसकी बिना पर आपको उन पर बरतरी हासिल हो, क्योंकि आपके पास ना तो माल ज़्यादा था और ना ही रियासत यानी जायदादें और ज़मीनें थीं। दोस्तों, सरदारानी कौम के ये एतराज़ात कुरान करीम की सूरह हूद में इन अल्फाज के साथ जिक्र किए गए हैं। उनकी कौम के कुफर करने वाले सरदारों और वडेरों ने कहा, हमें तो तुम हमारे अपने ही जैसा एक बशर दिखाई देते हो और हमने किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को तुम्हारी पैरवी करते हुए नहीं देखा, सिवाय हमारे मुआशरे के सती राय दिखाने वाले पस्तो हकीर लोगों के, जो बेसोचे समझे तुम्हारे पीछे लग गए हैं। और हमने तुम्हारे अंदर अपने ऊपर कोई फजीलत व बरतरी यानी ताकत व इक़्तिदार, माल व दौलत या तुम्हारी जमात में बड़े लोगों की शमूलियत, अलगर्ज ऐसा कोई नुमाया पहलू भी नहीं देखते, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। दोस्तों, ज़रा गौर फरमाएं कि एतराज़ात का जवाब देने से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गौर व फिक्र की दावत देते हुए फरमाया कि अगर मैं हक़ पर हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास से नबूवत अता की हो, लेकिन तुम गौर व फिक्र ना करने की वजह से उससे गाफिल व जाहिल रहो, तो मैं क्या करूँ? यानी तुम्हारा गौर व फिक्र की वजह से हक़ को ना समझना तुम्हारा कसूर है या मेरा? क्या मैं तुम्हें अपनी नबूवत कबूल करने पर मजबूर करूँ जबकि तुम ही उससे बेजार बैठे हो? ये मेरा काम नहीं। मुझे तो सिर्फ ये हुक्म है कि अल्लाह ताला का पैगाम तुम तक पहुँचा दूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मेरे पास मालो दौलत नहीं और इस वजह से मैंने पैगाम इलाही पहुँचाने का नाम लेकर ये दावत शुरू की है ताकि तुमसे मालो दौलत हासिल कर सकूँ, तो सुन लो, तुम्हारा ये गुमान सरासर बातिल है। मैं रिसालत की तबलीग पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा अजर तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे पर है। लिहाजा तुम इस फासद गुमान की वजह से अपने आप को उखरवी सारतों के हसूल से महरूम ना करो। और जहाँ तक मेरे पैरोकारों को मुफलिस और गरीब करार देने का ताल्लुक है, जिसका तकाजा ये है कि मैं उन्हें खुद से दूर कर दूँ, तो सुन लो कि तुम्हारी वजह से मैं गरीब मुसलमानों को अपने आप से दूर नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो रब्बे ताला की बारगाह में हजूरी का शर्फ और कुर्ब की फजीलत पाने वाले हैं, तो मैं उन्हें तुम्हारी वजह से खुद से दूर क्यों करूँ? हाँ, इसके बरक्स मैं तुम लोगों को जहालत का शिकार समझता हूँ। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को जवाब इन अल्फाज के साथ मज़कूर है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, बताओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर भी हूँ और उसने मुझे अपने हजूर से ख़ास रहमत भी बख्शी हो, मगर वो तुम्हारे ऊपर अंधों की तरह पोशीदा कर दी गई हो, तो क्या हम उसे तुम पर जबरन मुसल्लत कर सकते हैं, हालांकि तुम उसे नापसंद करते हो? और ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस दावत व तबलीग पर कोई माल व दौलत भी तलब नहीं करता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे पर है, और मैं तुम्हारी खातिर इन गरीब और पसमानदा लोगों को जो ईमान ले आए हैं धुतकारने वाला भी नहीं हूँ। तुम उन्हें हकीर मत समझो, यही हकीकत में मुअज़्ज़ज़ हैं। बेशक ये लोग अपने रब की मुलाकात से बहरायाब होने वाले हैं, और मैं तो दर हकीकत तुम्हें जाहिल व बेफहम कौम देख रहा हूँ। और ऐ मेरी कौम, अगर मैं उनको धुतकार दूँ तो अल्लाह के गज़ब से बचाने में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम गौर नहीं करते? दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर काफिर सरदारों ने कहा कि ऐ नूह, आपने हमसे बहुत मुबाहिसा कर लिया। ये वाज़ेह है कि हमने आपकी कोई बात नहीं माननी और आप भी हमारी कोई बात नहीं मान रहे। तो अब अगर आप सच्चे हैं तो हम पर वो अजाब ले आएं जिससे आप हमें डरा रहे हैं। कुरान मजीद की सूरह हूद में सरदारान कुफार का ये मुतालबा इन अल्फाज के साथ मज़कूर है। वो कहने लगे, ऐ नूह, बेशक तुम हमसे झगड़ चुके, सो तुमने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया। बस अब हमारे पास वो अजाब ले आओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम वाकई सच्चे हो। दोस्तों, मुतालबा कुफार के जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर अजाब नाजिल करने का इख्तियार अल्लाह ताला ही के पास है। वो जब चाहेगा उस अजाब को तुम पर नाजिल कर देगा, और जब उसने अजाब नाजिल करने का इरादा फरमा लिया तो तुम उस अजाब को रोक सकोगे और ना उसे बच सकोगे। और जिस दिन तुम पर अजाब नाजिल हुआ और तुम वो अजाब देखकर ईमान लाए, तो उस दिन मेरी नसीहत तुम्हें कोई फ़ायदा ना दे सकेगी, क्योंकि अजाब नाजिल होते वक्त का ईमान कबूल नहीं। याद रखो, मेरी नसीहत तुम्हें उस वक्त फ़ायदा देगी जब तुम अजाब का मुशाहिदा करने से पहले ईमान ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये जवाब और तंबीह कुरान पाक की सूरह हूद में इन अल्फाज के साथ मज़कूर है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वो अजाब तो बस अल्लाह ही तुम पर लाएगा अगर उसने चाहा, और तुम उसे आजिज़ नहीं कर सकते। और मेरी नसीहत भी तुम्हें नफ़ा ना देगी, ख़्वाह मैं तुम्हें नसीहत करने का इरादा करूँ। अगर अल्लाह ने तुम्हें गुमराह करने का इरादा फरमा लिया हो, वो तुम्हारा रब है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। रिवायात बताती हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत सुनकर काफिर सरदारों ने अपनी कौम से कलाम किया कि नूह अलैहिस्सलाम तो हमारे जैसा ही एक आदमी है जो खाता और पीता है, और ये चाहता है कि तुम उसे अपना बड़ा मान लो और उसके ताबे हो जाओ, ताकि ये सरदार बन जाएं और तुम्हें अपने ताबे कर ले। और अगर अल्लाह ताला ये चाहता है कि रसूल भेजे और शिरक से मना करे तो वो फरिश्ते उतार देता, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। और हमने अपने पहले बाप दादाओं में ये बात नहीं सुनी कि बशर भी रसूल होता है। नूह एक मजनून आदमी है जिस पर जुनून तारी है, इसलिए कुछ अरसा इंतज़ार कर लो, यहाँ तक कि उसका जुनून दूर हो जाएगा। ऐसा हुआ तो खैर, वरना उन्हें कत्ल कर देना।
दोस्तों, काफिर सरदारों का ये कलाम कुरान करीम की सूरह मोमिनून में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है। तो उनकी कौम के सरदार और वडेरे जो कुफ्र कर रहे थे कहने लगे, ये शख्स महज तुम्हारे ही जैसा एक बशर है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये तुम पर अपनी फजीलत और बरतरी कायम करना चाहता है, और अगर अल्लाह हिदायत के लिए किसी पैगंबर को भेजना चाहता तो फरिश्तों को उतार देता। हमने तो ये बात कि हमारे जैसा ही एक शख्स हमारा रसूल बना दिया जाए अपने अगले आबाओ अजदाद में कभी नहीं सुनी। ये शख्स तो सिवाय उसके और कुछ नहीं कि उसे दीवानगी का आर्जा लाहक हो गया है। सो तुम एक अरसे तक इसका इंतज़ार करो, देखो आगे क्या करता है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मज़ीद नसीहत करते हुए फरमाया कि क्या तुम अल्लाह ताला के अजाब से नहीं डरते कि कुफ्र और गुनाह को तर्क कर दो। बेशक मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक ऐसा रसूल हूँ जिसकी अमानतदारी तुम में मशहूर है, और जो दुनियावी कामों पर अमीन है वो वही और रिसालत पर भी अमीन होगा। लिहाजा तुम अल्लाह ताला से डरो, और जो मैं तुम्हें तौहीद व ईमान और अल्लाह ताला की बंदगी का हुक्म देता हूँ उसमें मेरी इताअत करो। और इखलास की इससे बढ़कर क्या दलील होगी कि मैं रिसालत की अदायगी पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। मेरा अजर व सवाब तो उसी के ज़िम्मे पर है जो सारे जहान का रब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को ये दावत कुरान मजीद की सूरह शोरा में इस तरह मज़कूर है, जब उनसे उनके कौमी भाई नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे इस तबलीग हक़ पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ सब जहानों के रब के ज़िम्मे है। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। दोस्तों, लेकिन ये कौम नूह की बदबख्ती थी कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बराबर झुटलाते रहे। रिवायात में आता है कि कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा कि फिर आप गरीबों और मुफलिसों को अपनी मजलिस से निकाल दीजिए ताकि हम आपके पास आएँ और आपकी बात मानें। इसके जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे लायक नहीं कि मैं तुम्हारी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करूं और तुम्हारी ईमान की तलब में गरीब मुसलमानों को अपने पास से निकाल दूं। मेरी जिम्मेदारी तुम्हें सही दलील के साथ साफ साफ डर सुनाना है, जिससे हक को बातिल में इम्तियाज़ हो जाए। तो जो ईमान लाए वही मेरा मुकर्रब है, और जो ईमान ना लाए वही मुझसे दूर रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये जवाब कुरान मजीद की सूरह शोरा में यूँ मज़कूर है, और मैं मोमिनों को धुतकारने वाला नहीं हूँ, मैं तो फ़कत खुला डर सुनाने वाला हूँ। रिवायात में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर कौम ने कहा कि ए नूह, अगर आप अपने दीन की दावत देने से बाज ना आए तो ज़रूर आप भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्हें संसार यानी पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया गया है। कुरान पाक की सूरह शोरा में कौम नूह अलैहिस्सलाम का ये जवाब यूँ मज़कूर है। वो बोले, ए नूह, अगर तुम इन बातों से बाज ना आए तो तुम्हें यकीनन संसार कर दिया जाएगा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि उनका अपनी कौम के दरमियान मुद्दत दराज तक ठहरना और अल्लाह ताला की आयतों के ज़रिए नसीहत करना उन्हें नागवार लग रहा है, और उनकी कौम ने उनके कत्ल और जलावतनी का इरादा कर लिया है, तो आपने उनसे फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान ठहरना और आयात इलाही के ज़रिए से नसीहत करना तुम पर बोझ है तो सुन लो कि मुझे अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा है और मैंने अपना मामला उसी के स्पुर्द कर दिया है। तो मेरी मुखालफत में और मुझे ईज़ा पहुँचाने के लिए जिस कदर असबाब जमा कर सकते हो कर लो, बल्कि अपने बातिल माबूदों को भी मिला लो और ये सब मंसूबा और साजिश ऐलानिया कर लो। फिर मेरे खिलाफ जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो और मुझे कोई मोहलत ना दो। मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह है ना कोई डर। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये कलाम कुरान पाक की सूरह यूनुस में यूँ मज़कूर है, और उन पर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाइए जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, औलाद काबिल, अगर तुम पर मेरा क़याम और मेरा अल्लाह की आयतों के साथ नसीहत करना गिरां गुजर रहा है तो जान लो कि मैंने तो सिर्फ अल्लाह ही पर तवक्कुल कर लिया है और तुम्हारा कोई डर नहीं। सो तुम इकट्ठे होकर मेरी मुखालफत में अपनी तदबीर को पुख्ता कर लो और अपने घड़े हुए शरीकों को भी साथ मिला लो, और इस कदर सोच लो कि फिर तुम्हारी तदबीर का कोई पहलू तुम पर मख्फी ना रहे। फिर मेरे साथ जो जी में आए कर गुजरो और मुझे कोई मोहलत ना दो। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और हर तरीके से नसीहत की, लेकिन कौम ने आपकी बात ना मानी और 80 अफराद के अलावा किसी ने ईमान कबूल ना किया। जब मालूम हो गया कि अब मज़ीद कोई शख्स ईमान नहीं लाएगा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में मनाजात की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये मनाजात कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर मज़कूर हैं। कुरान मजीद की सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये मनाजात यूँ मज़कूर हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, बेशक मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरी दावत ने उनके लिए सिवाय भागने के कुछ ज़्यादा नहीं किया, और मैंने जब भी उन्हें ईमान की तरफ बुलाया ताकि तू उन्हें बख्श दे तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लीं और अपने ऊपर अपने कपड़े लपेट लिए और कुफ्र पर हठधर्मी की और शदीद तकब्बुर किया। फिर मैंने उन्हें बुलंद आवाज़ से दावत दी, फिर मैंने उन्हें ऐलानिया भी समझाया और उन्हें पोशीदा राजदाराना तौर पर भी समझाया। फिर मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है।
وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا، اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اسی کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش و روسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ سو اے میرے رب، تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ دوستو یاد رہے کہ ان مناجات کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی کفار کے خلاف مزید بددعائیں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ سورہ قمر میں مذکور ہے۔ سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوں، پس تو انتقام لے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں درج ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے۔ اسی طرح سورہ نوح میں درج ہے، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ دوستو کافروں کے لیے مناجات کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک موقع پر کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جسے قرآن پاک کی سورہ نوح میں یوں بیان کیا گیا ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اور ظالموں کو سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔ دوستو آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کے پیروکاروں کو بڑے غم سے نجات بخشی اور جھٹلانے والوں کے خلاف آپ کی یوں مدد فرمائی کہ قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، بس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوز سے نجات بخشی، اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ دوستو اس آیت کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مسلمانوں کے بارے میں فرمائی اسے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں قوم نوح پر عذاب الہی کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے، لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب و استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر آپ غمگین نہ ہوں، اور ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، سو آپ ان کی تکذیب و استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ دوستو کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت میں صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کشتی بنانے کے حکم کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
और तुम हमारे हुक्म के मुताबिक हमारे सामने एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना, वो ज़रूर गर्क किए जाएंगे। और इसी तरह सूरह मोमिनून में इरशाद बारी ताला है कि फिर हमने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। सो जब हमारा हुक्म अजाब आ जाए और तनूर भरकर पानी उबलने लगे तो तुम उसमें हर किस्म के जानवर में से 2-2 जोड़े नर व मादा बिठा लेना और अपने घर वालों को भी उसमें सवार कर लेना, सिवाय उनमें से उस शख्स के जिस पर फरमाने अजाब पहले ही सादर हो चुका है। और मुझसे उन लोगों के बारे में कुछ अर्ज भी न करना जिन्होंने तुम्हारे इनकारो इस्तेहज़ा की सूरत में जुल्म किया है, वो हर सूरत डबो दिए जाएंगे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से साज के दरख्त बोए। 20 साल में ये दरख्त तैयार हुए। इस अरसे में मुतलकन कोई बच्चा पैदा न हुआ। इससे पहले जो बच्चे पैदा हो चुके थे वो बालिग हो गए और उन्होंने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मशगूल हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे और उनकी कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता और कहता कि ए नूह अलैहिस्सलाम, क्या कर रहे हो? आप फरमाते कि ऐसा मकान बना रहा हूँ जो पानी पर चले। ये सुनकर वो हंसते क्योंकि आप कश्ती जंगल में बना रहे थे जहाँ दूर दूर तक पानी ना था। और वो लोग मजाक के तौर पर यह भी कहते थे कि पहले तो आप नबी थे, अब बढ़ाई हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि किसी वक्त हम भी तुम्हें हलाक होता देखकर तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम कश्ती देखकर हंस रहे हो। तुम्हें जल्द ही रुस्वा कुन और दायमी अजाब का पता चल जाएगा। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान इस मकालमे का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह हूद में इन अल्फाज में किया गया है। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे और जब भी उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते उनका मजाक उड़ाते। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें जवाबन कहते, अगर आज तुम हमसे तमस्खर करते हो तो कल हम भी तुमसे तमस्खर करेंगे जैसे तुम तमस्खर कर रहे हो। सो तुम अनकरीब जान लोगे कि किस पर दुनिया में ही अजाब आता है जो उसे जलील और रुस्वा कर देगा, और फिर आखिरत में भी किस पर हमेशा कायम रहने वाला अजाब उतरता है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई। उसकी लंबाई 300 गज़, चौड़ाई 50 गज़, ऊंचाई 30 गज़ थी। इसमें और भी अकवाल हैं। उस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे। नीचे वाले दर्जे में जंगली जानवर, दरिंदे और हशरातुल अर्ज थे, और दरमियानी दर्जे में चौपाए वगैरह, और ऊपर वाले दर्जे में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपके साथी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जस्द मुबारक, जो औरतों और मर्दों के दरमियान हाइल था और खाने वगैरह का सामान था। और एक रिवायत के मुताबिक परिंदे भी ऊपर वाले दर्जे में ही थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम पर अजाब नाजिल होने और उनकी हलाकत का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उस अजाब के नाजिल होने की अलामत ये बयान फरमाई थी कि जब आप तनूर में से पानी जोश मारता देखें तो समझ लें कि अजाब के नज़ूल का वक्त आ पहुँचा है। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक उस तनूर से रूए ज़मीन मुराद है, और एक कौल के मुताबिक उससे यही तनूर मुराद है जिसमें रोटी पकाई जाती है। रिवायत में आता है कि जब तनूर में से पानी ने जोश मारा तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 3 तरह की चीज़ें कश्ती में सवार करने का हुक्म इरशाद फरमाया, हर जिन्स में से नर और मादा का एक एक जोड़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ उन तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया जो बच्चे जनते थे या अंडे देते थे। जानवर आपके पास आते और आप अपने दाएं हाथ से नर और बाएं हाथ से मादा को पकड़कर सवार करते जाते थे। बाज़ रिवायात में है कि सांप और बिच्छू ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की कि हमें भी अपने साथ सवार कर लें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी वजह से हम कहीं मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, इसलिए मैं तुम्हें सवार नहीं कर सकता। उन्होंने अर्ज़ की कि आप हमें सवार कर लें, हम आपको इस बात की ज़मानत देते हैं कि जो आपका जिक्र करेगा हम उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसी वजह से आज भी ये बताया जाता है कि जिसे सांप और बिच्छू से नुकसान पहुँचने का खौफ हो तो वो सूरह साफ़ात की आयत नंबर 79 पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह वो सांप और बिच्छू के नुकसान से महफूज रहेगा। दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहल खाना की, तो आपको बताते चलें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहल खाना में कुल 7 अफराद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके 3 बेटे साम, हाम, याफिस और उन तीनों की बीवियाँ, और जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए ये 80 अफराद थे। इनकी तादाद के बारे में मुतअद्दिद अक़वाल भी हैं। दोस्तों, अज़ाब की बयान की गई अलामात और कश्ती में सवारी का जिक्र कुरान मजीद की सूरह हूद में इन अल्फाज में जिक्र किया गया है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म अज़ाब आ पहुँचा और तनूर पानी के चश्मों की तरह जोश से उबलने लगा तो हमने फरमाया, ए नूह, इस कश्ती में हर जिन्स में से नर और मादा 2 अदद पर मुश्तमिल जोड़ा सवार कर लो और अपने घर वालों को भी ले लो, सिवाय उनके जिन पर हलाकत का फरमान पहले सादिर हो चुका है, और जो कोई ईमान ले आया है उसे भी साथ ले लो, और चंद लोगों के सिवा उनके साथ कोई ईमान नहीं लाया था। दोस्तों, इस आयत में जो फरमाया कि आपके घर में से इन पर अजाब आएगा जिन पर बात पहले तय हो चुकी है, इनसे मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाला है जो ईमान ना लाई थी, और आपका बेटा केनान है। अल्लाह ताला ने उनकी हलाकत का फैसला भी फरमा दिया था। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हर जिन्स में से नर और मादा का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करने के बाद
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान से फरमाया कि तुम इस कश्ती में ये कहते हुए सवार हो जाओ कि कश्ती का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम पर है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। कुरान मजीद की सूरह हूद में ये वाक़या यूँ बयान किया गया है, और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग उसमें सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से उसका चलना और उसका ठहरना है, बेशक मेरा रब बड़ा ही बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। दोस्तों, हज़रत ज़ुहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब चाहते थे कि कश्ती चले तो बिस्मिल्लाह फरमाते, और जब कश्ती चलने लगती और जब चाहते थे कि ठहर जाए तो बिस्मिल्लाह फरमाते और कश्ती ठहर जाती थी। रिवायत बताती हैं कि कश्ती में सवार होते वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब तुम और तुम्हारे साथ वाले कश्ती में सही तरह बैठ जाओ तो तुम कहना कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने जालिम लोगों को हलाक करके हमें उनसे नजात दी, और कश्ती से उतरते वक्त यूँ दुआ करना कि ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार दे और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। इस हवाले से कुरान करीम की सूरह मोमिनून में इरशाद बारी ताला है कि फिर जब तुम और तुम्हारी संगत वाले लोग कश्ती में ठीक तरह से बैठ जाएं तो कहना कि सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें जालिम कौम से निजात बख्शी, और अर्ज़ करना ऐ मेरे रब, मुझे बाबरकत मंजिल पर उतार और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। दोस्तों, जहाँ तक तूफ़ान की शिद्दत और सैलाबी मौजों की कैफियत की बात है तो रिवायात में आता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो आसमान से ज़बरदस्त बारिश बरसी और ये लगातार 40 दिन और रात बरसती रही। इस दौरान ज़मीन से भी इस कदर पानी निकला कि ज़मीन चश्मों की तरह हो गई, पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि हर चीज़ उसमें डूब गई, और हवा इस शिद्दत से चल रही थी कि इस वजह से पहाड़ों की मानिंद ऊंची लहरें बुलंद हो रही थीं, और इन्हीं लहरों के दरमियान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रमा दमा थी। इस वाक़े के जिक्र कुरान पाक की सूरह कमर में इन अल्फाज में बयान किया गया है, फिर हमने मूसलाधार बारिश के साथ आसमान के दरवाजे खोल दिए और हमने ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए, सो ज़मीन व आसमान का पानी एक ही काम के लिए जमा हो गया जो उनकी हलाकत के लिए पहले से मुकर्रर हो चुका था, और हमने उनको यानी नूह अलैहिस्सलाम को तख्तों और मेखों वाली कश्ती पर सवार कर लिया जो हमारी निगाहों के सामने हमारी हिफाजत में चलती थी। ये सब कुछ उस एक शख्स नूह अलैहिस्सलाम का बदला लेने की खातिर था जिसका इनकार किया गया था। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा केनान था। आप उसे इजहार इस्लाम की वजह से मुसलमान समझते थे, लेकिन दर हकीकत वो मुनाफिक था। तूफ़ान के वक्त ये कश्ती से बाहर एक किनारे पर खड़ा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकार कर कहा, ए बेटे, तू हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुकार सुनकर केनान ने कश्ती में सवार होने की बजाय ये जवाब दिया कि मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आज के दिन अज़ाब इलाही से कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ वही डूबने से बच सकता है जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे केनान के दरमियान एक लहर बुलंद होकर हाइल हुई और केनान उसमें डूबकर अपने अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह हूद में इन अल्फाज में किया गया है, और वो कश्ती पहाड़ों जैसी तूफ़ानी लहरों में उन्हें लिए चलती जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा और वो उनसे अलग काफिरों के साथ खड़ा था। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहे। वो बोला, मैं कश्ती में सवार होने की बजाय अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है मगर उस शख्स को जिस पर वही अल्लाह रहम फरमा दे। इसी असना में दोनों यानी बाप बेटे के दरमियान तूफ़ानी मौज हाइल हो गई, सो वो डूबने वालों में हो गया। दोस्तों, रिवायात में आता है, लहर हाइल होने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे की नजात तलब करते हुए बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और तूने मुझसे मेरी और मेरे घर वालों की नजात का वादा फरमाया है। बेशक तेरा वादा सच्चा है और इस वादे के पूरा होने में कोई शक नहीं। बेशक तू सब हाकिमों से बढ़कर जानने वाला और सबसे ज़्यादा अदल फरमाने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों यानी अहले ईमान या वादा नजात में शामिल घर वालों में से हरगिज़ नहीं। इसका अमल दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो बेटा हकीकत में काफिर था, लिहाजा ऐसे शख्स की सिफारिश ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। ये सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आर्जी से बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ मांगूँ जिसके बारे में मुझे ये इल्म नहीं कि उसका हसूल हिकमत के तकाजे के मुताबिक है या नहीं। और अगर तूने मेरे इस सवाल पर मेरी मग़फ़िरत ना फरमाई और मेरी अर्ज़ कबूल फरमाकर मेरे ऊपर रहम ना फरमाया तो मेरा शुमार भी नुकसान उठाने वालों में हो जाएगा। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह हूद में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, बेशक मेरा लड़का भी तू मेरे घर वालों में दाखिल था और यकीनन तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। इरशाद हुआ, ए नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में शामिल नहीं क्योंकि उसके अमल अच्छे ना थे, बस मुझसे वो सवाल ना किया करो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। मैं तुम्हें नसीहत किए देता हूँ कि कहीं तुम नादानों में से ना हो जाना।
नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो सवाल करूँ जिसका मुझे कुछ इल्म ना हो, और अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँगा। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे केनान का। अब तज़किरा करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाला के अंजाम का। रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी काफरा थी जो अपनी कौम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहती थी कि वो मजनून है। वो भी इसी तूफ़ान में गर्क हो गई और अल्लाह ताला ने उसे इबरतनाक मिसाल बना दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे के निकाह में होने के बावजूद वाला ने जब दीन के मामले में ख़यानत और ईमान की बजाय कुफ्र को इख्तियार किया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कराबतदारी उसके कोई काम ना आई और मौत के वक्त वाला से फरमा दिया गया या क़यामत के दिन फरमा दिया जाएगा कि तुम अपनी कौम के कुफ़ार के साथ जहन्नुम में जाओ, क्योंकि तुम्हारे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तुम्हारे कुफ्र की वजह से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। दोस्तों, इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरह तहरीम में इन अल्फाज में किया गया है। अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाला और लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाहला की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से दो सालेह बंदों के निकाह में थीं, सो दोनों ने उनसे ख़यानत की, बस वो अल्लाह के अज़ाब के सामने उनके कुछ काम ना आए और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब तूफ़ान अपनी इंतहा को पहुँचा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क कर दिया गया तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन को हुक्म हुआ, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा, और आसमान को हुक्म हुआ कि ए आसमान थम जा। उसके बाद ज़मीन खुश्क कर दी गई और यूं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की काफिर कौम मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई, जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह ज़मीन में घूमकर मूसल या शाम की हदूद में वाक़ जूदी पहाड़ पर ठहर गई। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह हूद में इन अल्फाज में किया गया है, और जब सफ़ीना नूह के सिवा सब डूब कर हलाक हो चुके तो हुक्म दिया गया, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान तू थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी और फरमा दिया गया कि जालिमों के लिए रहमत से दूरी है। इस हवाले से हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने उस कश्ती को इराक़ के एक जजीरे की सरजमीन में और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक जूदी पहाड़ पर मुद्दतों बाकी रखा, यहाँ तक कि हमारी उम्मत के पहले लोगों ने भी उस कश्ती को देखा। दोस्तों, याद रखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी ख़ताओं की वजह से तूफ़ान में डुबो दिए गए, फिर गर्क होने के बाद अज़ाब बरज़ख की आग में दाखिल किए गए। इस हवाले से कुरान मजीद की सूरह नूह में इरशाद बारी ताला है कि बिलाखिर वो अपने गुनाहों के सबब गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, सो वो अपने लिए अल्लाह के मुकाबिल किसी को मददगार ना पा सके। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के वाक़यात में इबरत व नसीहत का एक ख़जाना मौजूद है। उसमें मुतकब्बिरों और गरीब मुसलमानों को हकीर जानने वालों के लिए इबरत है। यूँ ही कुफ़ार के लिए इबरत है कि जो लोग अल्लाह ताला के रसूल को झुटलाएंगे उन पर वैसा अजाब आ सकता है जैसा कौम नूह पर आया। इसमें ईमान वालों के लिए भी दर्स है कि वो ईमान पर साबित कदम रहें। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को मुखालिफिन के शर से नजात दी, इसी तरह उन्हें भी मुखालिफिन के शर से बचाएगा। दोस्तों, कुरान मजीद में कई मकामात पर यह पहलू बयान किए गए। सूरह आराफ में इरशाद बारी ताला है, फिर उन लोगों ने उन्हें झुटलाया, सो हमने उन्हें और उन लोगों को जो कश्ती में उनकी मैयत में थे नजात दी, और हमने उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था, बेशक वो अंधे यानी बेबसीरत लोग थे। इसी तरह सूरह यूनुस में इरशाद बारी ताला है, फिर आपकी कौम ने आपको झुटलाया, बस हमने उन्हें जो उनके साथ कश्ती में थे अज़ाब तूफ़ान से नजात दी, और हमने उन्हें ज़मीन में जानशीन बना दिया और उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था। सो आप देखिए कि उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो डराए गए थे। दोस्तों, हमें चाहिए कि कुरान पाक में बयान किए गए गुज़श्ता कौमों के इन वाक़यात से सबक और नसीहत हासिल करें। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में 10वें रजब को सवार हुए और 10वीं मुहर्रमुल हराम को कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्र का रोज़ा रखा और अपने तमाम साथियों को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। कहते हैं, जब ज़मीन से पानी खुश्क हो गया, उस पर चलना फिरना और ठहरना मुमकिन हो गया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए नूह, तुम हमारी तरफ से सलामती और इन बरकतों के साथ कश्ती से उतर जाओ जो तुम पर और तुम्हारे साथियों की जमात पर हैं। इसके साथ ये भी फरमाया कि दुनिया में कुछ जमातें ऐसी भी होंगी जिन्हें अल्लाह ताला उनकी मुकर्रर करदा मुद्दतों तक फ़राखी, ऐश और वुस्अत रिज़्क़ अता फरमाएगा, फिर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। रिवायात के मुताबिक 10वीं मुहर्रमुल हराम को 6 माह बाद सफ़ीना नूह जूदी पहाड़ी पर ठहरा। सब लोग पहाड़ से उतरे और पहला शहर जो बसा उसका नाम शौकुस समानैन रखा। ये बस्ती जबल नहावंद के करीब मुत्तसिल मूसल में वाक़ है। इस तूफ़ान में 2 इमारतें मिसले गुंबद मनारा बाकी रह गई थीं जिन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा था, और उस वक्त रुए ज़मीन पर सिवाय उनके और कोई इमारत ना थी। हज़रत काबुल अबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे साम को बुलाया और फरमाया कि मैं तुम्हें 2 बातों की ताकीद करता हूँ और 2 बातों से मना करता हूँ।
पहली बात यह है कि इस बात की गवाही देते रहना कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं, बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलमा है जो सातों आसमानों को फाड़ सकता है और कोई चीज़ उसे छुपा नहीं सकती। अगर सातों आसमान, सातों ज़मीनें और जो कुछ उसके दरमियान है सब एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ये कलमा रख दिया जाए तो ये दूसरा पलड़ा वज़नी होगा। दूसरी बात यह है कि कसरत के साथ सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि ये कलमा सवाब का जामे है। तीसरी बात यह है कि किसी को अल्लाह ताला का शरीक ठहराने से बाज रहना। चौथी बात यह है कि अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और पर तवक्कुल करने से भी बाज रहना। दोस्तों, जहाँ तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक का जिक्र है तो इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में मबूस हुए और 950 साल अपनी कौम को दावत फरमाते रहे और तूफ़ान के बाद 60 बरस दुनिया में रहे। यूँ आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 1050 साल बनती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।